Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting the section 1 of the series 1 2026, and that is the English series. In this series we'll break down the section wise English questions that has been asked in series 1 2026 and understand the concepts behind them in detail, and we're going to cover the vocabulary section in detail, and even we are going to solve the options of each question. So the first topic we are starting with the pair of words. So they are very important because every year the series, like from last year, it's asking from this section. So in this video I will not only explain the questions, but I'm also going to tell you some extra information. So keep a notebook along with you, so that if any extra word comes up, so you just note it down. And also it can be used, this series it also can be used for the AFCAT purpose also, because same the homonyms and homophones that has been asked in AFCAT in the last session. So make sure like you watch the video till the end and note down all the important words, because these vocabulary based questions can easily boost your English score. So now, without wasting any time, let's start with the very first pair of word. So let's go with the first pair of words, that is, now what is the directions given that in the following items a pair of words is provided. You are required to select the option that most appropriately describes the meaning of both words and mark a response on the answer sheet. So the first one is pontoon and platoon. What does pontoon and platoon means? सिंपली तुमने सुना होगा प्लेटून के बारे में. तो प्लेटून क्या होता है? It is a word that has been used in basically army. So what does platoon means? Platoon means basically a small military unit which is consisting of soldiers. So it's a type of squad, you can say, right? And also a troop and a type of regiment, unit you can say, and battalion. So simply platoon means a temporary bridge. Platoon means a group of soldiers. So this is the only option that has been given. So option number C is the right answer. What does pontoon means? Pontoon means a temporary bridge. What does it means? It's a floating structure or a temporary bridge जो support करता है boats को और floats को. ठीक है. So simply एक जो आर्मी ने क्या build किया था, अगर मैं यूसेज बताऊँ इस सेंटेंस में, तो आर्मी ने एक build किया pontoon bridge अक्रॉस द रिवर. मतलब उन्होंने एक ऐसा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा टेम्पररी ब्रिज बनाया अक्रॉस द रिवर. सो एक ऐसा टेम्पररी ब्रिज होता है एंड ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं प्लेटून एंड पॉन्टून. गॉट इट? सो सिंपली इफ यू टॉक अबाउट द पॉन्टून, व्हाट डज पॉन्टून मीन्स? एक ऐसा फ्लोटिंग ब्रिज हो गया, या एक राफ्ट टाइप होता है, ठीक है, एक डॉक टाइप होता है, या कोई फ्लोटिंग चीज़ होती है. ठीक है. So this is the first question. Now move to the next is invoke and revoke. What does invoke and revoke means? Invoke का मतलब होता है it is mean like to use the law to achieve something. ठीक है. किसी भी चीज़ को invoke करना, मतलब you are using something, you are using the law to achieve something. ठीक है. तो ये invoke भी हमारा verb है and evoke भी हमारा revoke भी हमारा verb होता है. ये दोनों के दोनों forms verb के forms हैं. ठीक है. तो रिवोक क्या होता है और इन्वोक क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ को तुमने साइट करना, ऐसी चीज़ को लॉ, इट मीन्स टू यूज़ द लॉ टू अचीव समथिंग, एंड रिवोक मीन्स टू ऑफिशियली कैंसिल परमिशन और एग्रीमेंट. बोलते हैं कि रिवोक कर लिया, कैंसिल कर दिया. तो रिवोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कैंसिल कर देना, विदड्रॉ कर देना. ठीक है. एनल कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. किसी भी चीज़ को रिपील कर देना, रद्द कर देना, और इनवैलिडेट कर देना. ठीक है. तो ये रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना, विदड्रॉ कर देना, एनल कर देना. एनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. रिपील कर देना, इनवैलिडेट कर देना. बट इन्वोक होता है किसी को साइट करना, सिंपली टू साइट समवन और टू कॉल अपॉन, कि हाँ तुमने जो भी चीज़ है सिंपली ऐसी चीज़ करना टू अचीव समथिंग. ठीक है. और समन करना,
या फिर साइट करना या अपील करना कि ये ठीक है। तो ये हमारा मतलब होता है इन्वोक का एंड रिवोक का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इन्वोक मीन्स टू यूज़ द लॉ टू अचीव समथिंग एंड रिवोक मीन्स टू ऑफिशियली कैंसिल परमिशन और एग्रीमेंट। ठीक है, कैंसिल कर देना, विड्रॉ कर देना, एनल कर देना, रिपील कर देना, इनवैलिडेट कर देना। नाउ मूव टू द थर्ड वन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वर्ब फॉर्म थी और ऊपर वाले हमारे दोनों के दोनों कौन से थे, नाउन। ठीक है, पोंटून एंड दीज बोथ आर नाउन। नाउ इमिनेंट और एमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट और एमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट होता है जो चीज़ अभी होने वाली है, लाइक इट्स हैपनिंग सून। बट एमिनेंट होता है एक फेमस पर्सन, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज एमिनेंट पर्सनालिटी। ठीक है, तो एमिनेंट इमिनेंट, सो आई वाला वर्ड होता है इट्स हैपनिंग। ठीक है, हैपनिंग सून, सो यू कैन से। एंड एमिनेंट होता है एक ऐसी फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सन और पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। एमिनेंट पर्सनालिटी, ऐसे कोई भी चीज़ एमिनेंट है, इट्स अबाउट टू हैपन वेरी सून। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम एज अ सिनोनिम अगर इसके लिए इमिनेंट के। तो इमिनेंट मीन्स बेसिकली व्हाट डज इमिनेंट मीन्स, किसी भी चीज़ जो ये अप्रोचिंग है। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा नियर है, ओके, विच इज़ फॉर द कमिंग, जो होने ही वाली है जस्ट। ठीक है, और जो चीज़ इम्पेंडिंग है, जिसको पेंडिंग नहीं रख सकते, होने ही वाली है, इम्पेंडिंग है। एंड ऑल्सो जो कि अपकमिंग है। ठीक है, तो ये क्या हमारा इमिनेंट है। बट वट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिनेंट? एक ऐसी पर्सनालिटी विच इज़ वेरी वेल नोन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नोटेबल है। एंड ऑल्सो लाइक जो रिनाउंड पर्सनालिटी है। ठीक है, रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एमिनेंट मीन्स हैपनिंग सून एंड एमिनेंट मीन्स अ फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन, लाइबल एंड लाइबल। बोलते हैं ना कि तुम इस चीज़ के लाइबल नहीं हो। ठीक है, या फिर मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी अनप्रेजेंट और रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि तुम इस चीज़ के लाइबल हो या तुम इस चीज़ के लाइबल नहीं हो। ठीक है, तुम इस चीज़ से लाइबल नहीं हो, कहते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो लाइबल का मतलब होता है बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल एंड ऑल्सो लाइकली। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लाइबल। इट मीन्स बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल एंड लाइबल मीन्स पब्लिशिंग समथिंग दैट इज़ वेरी फॉल्स। सो लाइबल का मतलब होता है, या इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं नाउन भी और वर्ब भी। तो एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिश की जा रही है, समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा फॉल्स है। ठीक है, मतलब लाइबल का मतलब होता है बेसिकली व्हाट डज लाइबल मीन्स? लाइबल मीन्स विच इज़ used for the defamation। ठीक है, जो स्लेंडर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेक है, स्लेंडर है, फॉल्स है, एक्यूजेशंस के लिए फॉल्स है। ठीक है, ऑल्सो जो कि करेक्टर अटैक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड। स्लैंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो करेक्टर अटैक, डिफॉर्मेशन फॉल्स है, एक्विजिशन है, करेक्टर अटैक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ दी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस। व्हाट इज इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडुलस मीन्स? इनक्रेडिबल होता है ना कि जैसे यार ये पर्सन इट्स इनक्रेडिबल, बोलते हैं ना कैसे, इट्स इनक्रेडिबल, इट मीन्स लाइक इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव। एंड व्हाट डज मीन्स इनक्रेडुलस? इट्स मीन्स नॉट विलिंग टू बिलीव। इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस दोनों की दोनों होमोनिम्स हैं, दोनों के दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, बट इनका मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे कि इनक्रेडिबल होता है ना कि लाइक ये डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ये इनक्रेडिबल इसका मतलब होता है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। बट व्हाट डज इनक्रेडुलस मीन्स? तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है, जस्ट वेट, इनक्रेडिबल का मतलब होता है
डिफ़िकल्ट टू बिलीव। बट इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो कि नॉट विलिंग टू बिलीव, कि यार ये हो ही नहीं सकता, नॉट विलिंग टू बिलीव। गॉट इट। सो ये दोनों के दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं इन दोनों का। एक का मतलब है विच इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव, बट इसके तो विलिंग, नॉट विलिंग टू बिलीव। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है विच इज़ इनक्रेडिबल वर्सेस इनक्रेडुलस। इनक्रेडिबल मीन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। पर्सन, थिंग विच इज़ एस्टॉनिशिंग, थिंग विच इज़ शॉकिंग एंड विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसको पॉजिटिव सेंस ही तुम यूज़ कर सकते हो। बट व्हाट इज़ इनक्रेडुलस मीन्स, इनक्रेडुलस का मतलब होता है लाइक जो कि स्केप्टिकल है, ठीक है, जो चीज़ डाउटफुल है। एंड ऑल्सो जो कि चीज़ सस्पिशियस है। एंड ऑल्सो मैं इसको अनकन्विंस्ड है, ठीक है। तो इसका दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या क्या मतलब है इसका? सिंपली इनक्रेडिबल का मतलब होता है, क्या होता है, अमेजिंग है, एस्टॉनिशिंग है, शॉकिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, स्केप्टिकल है, सस्पिशियस है एंड अनकन्विंस्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, इनक्रेडिबल मीन्स difficult to believe and incredulous means not willing to believe something. So option number B is the right answer. Now moving to the sixth option, climatic and climactic. What does climatic and climactic means? So climatic होता है climate से related, climate, ठीक है, ये climate से related होता है। बट what does climactic means? सिंपली जब तुम कोई मूवी देखते हो तो तुम्हें एक क्लाइम होता है ना कि यार क्लाइमेट मत दे, क्लाइमैक्स मत दे, ठीक है, ऐसे ऐसे उसको यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्लाइमैटिक मीन्स सिंपली विच इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस। बट क्लाइमैटिक मीन्स ड्रामेटिक, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, जिसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें इंटेंस हो और जो कि डिसिसिव हो, ठीक है। बट क्लाइमेटिक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड और वेदर अपडेटेड या वेदर रिलेटेड से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्लाइमेटिक मीन्स रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक मीन्स मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी और द सिचुएशन। So option number A is the right answer. So this is all about first section. Now move to the second slide. Seventh question is cursor and कर्जरी। व्हाट डज कर्जर मीन्स? तुमने माउस या तुमने लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया हो तो उसमें कर्जर होता है, माउस में कर्जर होता है। तो सिंपली एक ऐसा मूवेबल सिंबल होता है, एक पॉइंटर होता है कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। तो एक कर्जर मीन्स अ पॉइंटर एंड कर्जरी मीन्स समथिंग डन इन अ हैज़। तो कर्जर का मतलब होता है बेसिकली एक पॉइंटर होता है, ठीक है, एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर से तुम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, एक मार्कर होता है या फिर एक एरो होता है। बट व्हाट डज कर्जरी मीन्स? कर्जरी एक एडजेक्टिव की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब होता है विच इज़ डन, द थिंग विच इज़ डन क्विकली विदाउट मच अटेंशंस और डिटेल्स। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैसली करी जाएँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्विकली करी जाएँ एंड विच इज़ सुपरफिशियल एंड ऑल्सो careless and things are very quick, ठीक है। तो ये इसका कर्जरी का मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कर्जर मीन्स अ पॉइंटर एंड कर्जरी मीन्स समथिंग डन इन अ हैस्ट। नाउ मूव टू द एथ क्वेश्चन, अफेक्ट इफेक्ट। तो अफेक्ट वाला जो होता है ई इफेक्ट वाला होता है। ई इफेक्ट वाला हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ए वाला एक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास अफेक्ट होता है, एक हमारे पास इफ़ेक्ट होता है। तो जो एक्शन हो रहा है मतलब वहाँ पर वो वर्ब की तरह आएगा और जो रिज़ल्ट बता रहा है वो नाउन होगा, ठीक है। तो अफेक्ट और इफ़ेक्ट। अफेक्ट मीन्स किसी भी चीज़ को एक्शन में इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। तो एक्शन इन्फ्लुएंस करना किसका मतलब होता है? अफेक्ट का। बट इफ़ेक्ट का मतलब होता है जो कि चीज़ रिजल्ट से रिलेटेड। तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना,
ठीक है, उस चीज़ पे का क्या तुम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को चेंज करना, ऑल्टर करना और मॉडिफाई करना। तो ये क्या हो रहा है, कुछ एक्शंस हो रहे हैं, तो इट मीन्स एक वर्ब की तरह आएगा। बट इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, ये नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। ये रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी एक एक्शन या अफेक्ट उस चीज़ का पड़ा हो, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट की तरह यूज़ किया जाता है। एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, और इसकी आउटकम क्या है, ठीक है, एंड इसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं, उस जो रिज़ल्ट आया है उसको इफ़ेक्ट बोलते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए हैं उसको रिज़ल्ट बोलते हैं, उसको इफ़ेक्ट बोलते हैं, और इसके आउटकम्स जो आए हैं उसको इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बेसिकली अफेक्ट मीन्स टू इम्पैक्ट समथिंग एंड इफ़ेक्ट मीन्स टू रीज़न। नो, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अफेक्ट मीन्स द ओरिजिन ऑफ द समथिंग एंड इफेक्ट मीन्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। So option number A is the right answer. Now move to the next is hard and hardly. So what does hard means? Hard हम इसको यूज़ कर सकते हैं as a adjective form की तरह और also as a adverb की तरह, but hardly is always is used as a verb adverb, ठीक है। तो it is always used as a adverb। जो ly से end होते हैं वो कुछ तो 99.9% हमारे पास एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो अब हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस है, बोलते हैं कि शी वर्कड हार्ड टू क्लियर द CTS एग्ज़ाम। तो उसने क्या किया, शी वर्कड हार्ड मतलब उसने कोई काम किया, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, जो फर्म है एंड जो कि स्ट्रेनुअस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेनुअस, ठीक है। तो हार्ड को एज ए डिफ़िकल्ट की तरह यूज़ करो, टफ की तरह यूज़ करो, जो इंटेंस है, जो फर्म है, स्ट्रेनुअस है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हार्डली, तो हार्डली का मतलब होता है बैरली की तरह यूज़ किया जाता है, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम। तुम्हें पता होगा जैसे बैरली हो गया और स्कैर्सली हो गया, ठीक है, रेयरली हो गया। तो ये अपने साथ क्या लेते हैं, इन्वर्जन्स लेते हैं, ठीक है। तो हार्डली के साथ हमेशा देन आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर उसके साथ देन आया है तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। हमेशा हार्डली देन लेता है एंड इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने में, बट इसमें क्या होता है, वर्ब पहले आती है एंड देन सेंटेंस पहले आता है, ठीक है। जैसे आई डेड, तो इसमें क्या होगा, डेड आई, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज़ किया जाता है एज ए इन्वर्जन। जैसे आई हैड एंड इसका इन्वर्जन क्या होगा, हैड आई, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। सो नाउ ऑप्शन नंबर हार्ड मीन्स डिफिकल्ट एंड टू ग्रेट डिग्री एंड हार्डली मीन्स स्कैर्सली। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। व्हाट डज कॉन्शियस मीन्स, बोलते हैं कि तुम कॉन्शियस तरीके से अपना पेपर करना, कॉन्शियस रहना। इट मीन्स टू एबल टू परसीव एंड अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, थाट्स एंड ऑल्सो द फीलिंग्स, कि तुम उस चीज़ से अवेयर हो, तुम अलर्ट हो। तो कॉन्शियस का मतलब होता है सिंपली अवेयर रहना, अलर्ट रहना, माइंडफुल रहना एंड अटेंटिव रहना, ठीक है। बट व्हाट डज कॉन्शियस मीन्स, कि क्या सही है और क्या गलत है, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे साइंस वाले बच्चों को बेसिकली पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसको ऐसे यूज़ करो, ऐसे याद करो। तो कॉन्शियस का मतलब होता है जो क्या है कि चीज़ें क्या मोरल है, मोरल एथिक्स से रिलेटेड होता है, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड इंटीग्रिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, कॉन्शियस मीन्स ब्राइटनेस, नो, कॉन्शियस मीन्स अवेयरनेस, येस, एंड कॉन्साइज मीन्स बीइंग स्पिरिचुअली अवेयर। But option number C is the right answer, means conscious means being able to perceive and conscience means inner sense of right and wrong. So ये हमारे पास noun होता है conscience and conscience, and conscious होता है हमारे पास adjective।
एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि OUS वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास वर्ड्स थे। नाउ कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो जाए तो मैं 5 to 6 बताऊँगी, याद रखना उन चीज़ों को, ठीक है। जस्ट वेट। सो हमारे पास और कुछ हार्मोनियम्स और होमोफोन्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एक्सेप्ट आता है और एक वर्सेस एक्सेप्ट आता है। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, रिसीव कर लेना, एंड एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड, इफ़ यू टॉक अबाउट एडवाइस और एडवाइस, एक होता है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। जहाँ पर एस आता है वो वर्ब की तरह यूज़ होता है और जो सी आता है वो नाउन की तरह यूज़ होता है, बस ये बेसिक डिफरेंस है। तो एडवाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ से सजेशन। देखो यहाँ पर भी आ गया, IUN वाले वर्ड्स हमेशा नाउन होते हैं, एडवाइस भी क्या होता है? हमारे पास नाउन होता है। बट एडवाइस का मतलब होता है जो एक हम किसी को रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं, ठीक है। डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लाइक डॉक्टर एडवाइस ड्रिंकिंग मोर वाटर। सो रिकमेंड करना, किसी चीज़ को सजेस्ट करना एंड काउंसिल करना। बट जो काउंसिल करके जो सजेशन मिली है उसको एडवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एज अ गाइडेंस यूज़ करो एंड इसको एज अ गुड एडवाइस यूज़ करो, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड वन। हमारे पास एक और होता है जैसे कि एक प्रिंसिपल और प्रिंसिपल काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, एक PAL वाला होता है, एक PLE वाला होता है। तो PAL वाला हमेशा एक नाउन होता है जो कि स्कूल्स में होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो कि हेड होता है स्कूल का उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। बट प्रिंसिपल होता है बेसिकली जो तुम्हारे पास एक रूल्स, एक बिलीव्स होती हैं और एक मोरल आइडिया होता है, ठीक है, कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं। ऑनेस्टी एक हमारी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी लाइफ का, और प्रिंसिपल क्या है? स्कूल के हेड्स, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ऑल्सो एक और हमारा कन्फ्यूजिंग, एक स्टेशनरी, तुमने सुना होगा, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। इसमें ई आ रहा है, जैसे कि पेन में ई आता है, पेंसिल में ई आता है। तो ये सारा स्टेशनरी हमारी स्टेशनरी आइटम्स के लिए यूज़ की जाती है। बट स्टेशनरी इसका मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है। तो स्टेशनरी विच इज़ नॉट मूविंग। एक और कर लो, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। इसमें आई आता है कॉम्प्लीमेंट और इसमें ई आता है। तो क्या डिफरेंस है मेजर? कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना किसी को, क्या देते हैं कॉम्प्लीमेंट? कि यार शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, इसका उसने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट जो होता है, आई से इसको नाइस की तरह यूज़ करो। नाइस तो एक किसी को प्रेज़ करना, ठीक है, या फिर एडमायर करना। बट ये कंप्लीट है, देखो कॉम्प्लीमेंट, तो ये कंप्लीट की तरह आ रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब होता है विच इज़ कम्प्लीटली मैचिंग, जैसे कि जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है जीन्स के साथ, जैसे कि जो भी ड्रेसेस हैं उसके साथ ये जीन्स क्या है, ये मैच कर रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रही है। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे, ठीक है। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स किए? हमने करे एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एडवाइस एंड एडवाइस, सी वाला नाउन, एस वाला वर्ब, सजेशन की तरह यूज़ किया जाता है एडवाइस को। और हमारा एडवाइस एस वाले वर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं? कोई रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं। प्रिंसिपल एंड ऑल्सो प्रिंसिपल, पल PAL वाला हमारा जो होता है वो हमारे पास एज अ स्कूल हेड को के लिए यूज़ किया जाता है। एंड प्रिंसिपल जो होता है हमारे एक रूल्स और बिलीव्स होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी और स्टेशनरी, जहाँ पर ई आता है, जैसे पेन के अंदर ई आ रहा है, पेंसिल के अंदर ई आ रहा है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे? एज अ स्टेशनरी आइटम्स, बट स्टेशनरी विच इज़ नॉट मूविंग। ऑल्सो मूव टू द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि नाइस, कॉम्प्लीमेंट नाइस जैसे बोलते हैं किसी को, तो कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रेज़ करना, एडमायर करना, प्रेज़ में भी आई आ रहा है और एडमायर में भी आई आ रहा है। बट
कॉम्प्लीमेंट को ऐसे याद करो, कंप्लीट जो चीज़ है वो जो कि एनहांस है और जो कि मैच्ड है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 1. होप यू हैड लाइक्ड इट. सो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोज़ भी करेंगे, हर एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे. और इसमें कुछ था नहीं, बेसिकली एक मीनिंग्स थे, वर्ड मीनिंग्स की तरह इसको यूज़ किया गया था. बट आगे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि उनके सिनोनिम्स भी हम करेंगे, ईच 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स ऑफ द ईच वर्ड. और दैट्स इट. सो थैंक यू.